Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. Today's session is about an important term, confessional poetry. Without any delay, let's start the session. Now, as you can see, the term is itself self-explainable. Confessional poetry. पहली बात तो it is a type, it is a genre of a poetry and confessions. सबने ओवर टाइम लाइफ में ये वर्ड ज़रूर सुना है confession. Confession का सिर्फ एक ही मतलब होता है that you are accepting something in front of people, in front of mass. That is confession. These confessions are generally about something which is not acceptable in society. बिकॉज अगर सब कुछ ओपनली टॉक हो ही रहा है, लोग ओपनली बात कर रहे, तो वाई यू नीड टू कन्फेस समथिंग? दैट इज नॉट कन्फेशन. अगर सब चीज ओपनली बात हो रहा है, इट इज नॉट अ टैबू टू टॉक अबाउट दैट इन द सोसाइटी. Confessional means something which is a taboo to talk about, and you are now openly talking about it with different peoples, with a mass number of people. It can be done through various modes. आप चर्च में जाके फादर के सामने कन्फेशन करते हो, आप किसी अपने क्लोज वन से जिनसे आपने कुछ छुपाया है या फिर यू वांट टू कन्फेस समथिंग टू दैट पर्सन, आप अपनी फीलिंग्स उनसे कन्फेस करते हो. यहाँ पे हमारे पास राइटर्स है, कुछ अमेरिकन राइटर्स है जिनके बारे में हमें आगे देखना है कि हाउ दे स्टार्टेड दिस कन्फेशनल थिंग इन अ पोइट्री जॉनर. In our today's session, we'll see what is confessional poetry, where did it originate, key features of confessional poetry, and important writers and their key works. Let's start with what is confessional poetry. Simple definitions में अगर आपसे पूछा जाए, it is a type of poetry where the poet writes about their personal life. Just keep noting down the keywords: personal life, opening honestly to the readers and sharing the painful moments of their life. आप इसमें अपने पर्सनल लाइफ को लेके कुछ कन्फेशन करते हो. दिस पर्सनल लाइफ कैन बी अबाउट योर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, योर क्लिनिकल मैटर्स, योर मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंसेस, your suicidal impulses, your experiments with drug, something which is not okay to talk in the society. आप अपने पर्सनल फीलिंग्स के बारे में इसमें बताते हो, ऑनेस्टली बताते हो. You cannot make up a story and say to someone. No, you have to be honest while writing confessional poetry. आप इसमें अपने पेनफुल मोमेंट्स को भी बता सकते हो. How once you thought of suiciding and what are the things that you did at that time, or how you are in a depression, or how you were in an extramarital affair with someone. अब आपको confess करना है openly because you are now too fed up holding it up. इसको कहते हैं confessional poetry. This genre generally talks about taboo topics. Those topics which are not openly spoken in the society, which any individual is not allowed to speak openly. The poet openly lays out the personal feelings of them. Lays out का मतलब है कि वो आपके सामने उस चीज को प्रेजेंट करता है कि this is the thing, this is the reality. ये एक पर्सनल मोड ऑफ राइटिंग है. कन्फेशनल पोइट्री, आप एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज रिटन इन अ narrative style with lyric verse. When you'll read any confessional poetry, you will feel that you are reading a story about someone. You are reading about someone, about their personal life you are getting to know about. आपको उसके बारे में पता चल रहा है और ये लिरिक वर्सेस में लिखा रहता है. आपको एक फ्लो दिखेगा इन पोइट्रीज में, इसीलिए इसमें इसको पोइट्री के जॉनर में हम लोग देखते हैं. ये एक रिवोल्यूशनरी पोइटिक स्टाइल है, ऑब्वियसली, विच इज नॉट, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉट अलाउड. तो आप उसके लिए फाइट कर रहे हो, अपने एक्सेप्टेंस के लिए सोसाइटी में फाइट कर रहे हो. दैट इज रिवोल्यूशनरी. इसीलिए इट इज अ टाइप ऑफ रिवोल्यूशनरी पोइटिक स्टाइल. द ओरिजिनेशन ऑफ कन्फेशनल पोइट्री was around 1950s and 60s in America.
ओरिजिनल में ये कन्फेशनल पोइट्री का जो जॉनर है ये अमेरिका से ओरिजिनेट होता है हमारे पास, दैट टू अराउंड 1950s एंड 60s, एंड स्लोली इट टुक द फॉर्म ऑफ इट टुक द फॉर्म ऑफ स्लैम पोइट्री, परफॉर्मेंस पोइट्री, जैसे कि हमारे स्टेजेस में होते हैं स्लैम पोइट्री होता है हमारे पास अभी काफ़ी सारे स्लैम पोइट्री के वीडियोस क्लिप्स आपको यूट्यूब में भी मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस पोइट्री जिसमें यू कन्फेस समथिंग। तो ये सारी चीज़ों का इन्होंने अभी न्यू फॉर्म ले लिया है। Now, why the genre of confessional poetry? Why what was the need for it to get emerged? क्यों जरूरत पड़ी इस चीज की? Now, this particular genre, it emerged in America. एक ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कब होता है 1950s 60s में, इसीलिए होता है क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी वॉज स्टिल कंजर्वेटिव। अभी भी वहां पे लोग ओपनली उस चीज कोई भी चीज को लेके बात नहीं करना चाह रहे थे, जैसे कि आपका मेंटल हेल्थ। आप वहां पे अभी भी हमने सिगमंड फ्रॉइड के थ्योरीज में भी देखा है कि आप थेरेपी बोल के वहां पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है अभी भी हमारे पास। अगर आपका कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज है, आप डिप्रेशन में हो, आपको डायरेक्टली हिस्टेरिक बुला लिया जाता है। हिस्टेरिक इज अ टर्म फॉर समवन हु इज मैड, स्पेशली वुमेन्स के लिए, विच टर्म्स यूज होते थे पहले तो, कि इफ शी इज एक्टिंग वियर्डली, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, देन शी इज अ विच, हिस्टेरिक। तो आप ओपनली उन सब चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते। इवन टुडे इफ अ पर्सन इज इन डिप्रेशन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स फॉर दैट पर्सन टू ओपन अप टू समवन। वैसे ही कि कोई इंसान को अपने लाइफ में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसको पता चलता है दैट पर्सन इज लाइक नॉट generally belongs to two genders of our society, either male or female, bisexual है, तो उसके लिए भी उसको ओपन अप होने में बहुत टाइम लग जाता है, लास्ट में वो कन्फेस करता है। तो आपको वहां से एसेंस समझ में आ रहा होगा। आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं बात कर सकते हो। वुमेन वॉइसेस अभी भी काफी ज्यादा एक्नॉलेज नहीं की जा रही थी। वुमेन्स कुछ कहती तो हंसी मजाक में बातें ले ली जाती थी, सीरियसनेस नहीं था ओवरऑल वुमेन के लिए सोसाइटी में। तो दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देयर कन्फेशंस एंड ऑल। तो ये यहाँ से शुरू होता है हमारा पोइट्री, इस तरीके से शुरू होता है। द नीड वॉज दिस। Now, confessional poetry opened a platform for many writers to talk openly about their pain, their feelings, their mental illness, traumas, etc. Now, the term confessional poetry was first used for the work of Robert Lowell. रॉबर्ट लोवेल हमारे पास एक राइटर है, उनका एक वर्क है लाइफ स्टडीज 1959 का। When he was writing, he didn't knew that he was writing a confessional poetry. उनको मालूम नहीं था कि वो एक confessional poetry लिख रहे। उन्होंने just अपने मैरिज के बारे में लिख दिया, about his sinking marriage, traumas of life, generational struggles, इसके बारे में लिखा। After that, it was a critic named M.L. Rosenthal. He gave the term confessional poetry to the work of Robert Loswell. उन्होंने बोला कि रॉबर्ट लॉसवेल ने जिस पैटर्न में लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ कन्फेशनल पोइट्री, इट इज कन्फेशनल पोइट्री। तो रॉबर्ट लॉवेल के वर्क से ये टर्म शुरू होता है। ये टर्म कॉइन करने वाले थे M.L. रोजेंथल, अ क्रिटिक फॉर द वर्क्स ऑफ रॉबर्ट लोवेल। और वहां पे उन्होंने एक इनके लिए कोटेशन दिया था, रिमूव्ड द मास्क। आपने अपने ऊपर से वो पर्दा हटा लिया है जो आप काफी टाइम से अपने आप को कवर, अपनी रियलिटी को कवर करने के लिए लगा के रखा था आपने। नाउ समटाइम्स वी सी दैट आपसे पूछ लिया जाता है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कन्फेशनल पोइट्री, दैट इज रॉबर्ट लोवेल। बट हु कॉइंड द टर्म कन्फेशनल पोइट्री, इट विल बी M.L. रोजेंथल। नाउ this particular confessional poetry genre was against the modernist strain of poetry. T.S. Eliot जैसे राइटर्स के अगेंस्ट कन्फेशनल पोइट्री बात करता है। T.S. Eliot राइटर्स जैसे राइटर्स का ये व्यू है कि पोइट्री सिर्फ और सिर्फ पोइट्री के लिए होना चाहिए, राइट? उनका ये कहना है। यहाँ पे इम्पर्सनैलिटी की थियोरी को लेके T.S. Eliot बात करते हैं, तो यहाँ पे कन्फेशनल पोइट्री जस्ट उसके अपोजिट वर्क करता है।
कन्फेशनल पोइट्री के कुछ की फीचर्स होते हैं, लाइक दे आर डीपली पर्सनल। आप कोई छोटे मोटे टॉपिक के बारे में नहीं करते हो, आप उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हो जो आप कभी बोल ही नहीं सकते हो, किसी के सामने बात ही नहीं कर सकते हो। इट इज डीपली पर्सनल। वो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन से अटैच्ड होता है वो सारी बातें। इट टॉक्स अबाउट समथिंग विच इज नॉट येट टॉक्ड ओपनली, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी देखा है। एक्सप्रेस्ड इन रॉ इमोशंस विथ ऑनेस्टी। आप इसमें फिल्टर लगा के बातों को नहीं बताते हो, जैसा है जैसा हुआ वैसा ही बताओगे। आप ओवर एम्फेसाइज भी नहीं कर सकते हो कि आपको किसी का एम्पैथी सिंपैथी चाहिए और आपने चीजों को ओवर एम्फेसाइज करके बता दिया। यू कैन नॉट डू दैट। इट नीड्स टू बी रॉ, जैसा था वैसा, ऑनेस्टी के साथ। नाउ जनरली द term uses colloquial language to transmit the emotions. Colloquial language होता है man to man speaking language as it was described by William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ ने colloquial language के बारे में बात किया है अपने वर्क में। तो colloquial language को उन्होंने सिंपली डिफाइन किया man speaking to man. आप इसमें कोई फैंसी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज नहीं करोगे जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस आएगा, एक वर्ड का एम्बिगस मीनिंग जनरेट होगा, मेटाफोरिकल मीनिंग्स आएंगे, कुछ नहीं। नॉर्मल सिंपली कॉलिक्वल लैंग्वेज जैसे हम जनरली कॉन्वर्सेट करते हैं वैसा। ये नेचर में ऑटोबायोग्राफिकल होता है कन्फेशनल पोएट्री, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द आई फैक्टर ऑफ द पोएट। वो अपने बारे में बताता है, सेल्फिश होके वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है, वो और किसी चीज के बारे में नहीं बात कर रहा है। इट टॉक्स अबाउट द आई फैक्टर, इसीलिए ये ऑटोबायोग्राफिकल होता है एंड इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होता है इसमें। नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट अमेरिकन कन्फेशनल पोएट्स। इसमें इंडियन कन्फेशनल पोएट्स भी आते हैं, ब्रिटिश भी आएंगे, बट स्टार्ट अमेरिका में होता है, इसीलिए टुडे वी आर डीलिंग विद द अमेरिकन कन्फेशनल पोएट्स। आई ब्रिंग अनदर सेशन इन विच वी विल डील विद इंडियन कन्फेशनल पोएट्स। अमेरिकन कन्फेशनल पोएट्स में हमारे पास सबसे पहले आती हैं सिल्विया प्लैथ। सिल्विया प्लैथ ने एक्सटेंसिवली इस जॉनर में लिखा है। इनका सबसे फेमस वर्क इस जॉनर में है डैडी। नाउ दिस पोएम यू गाइज नीड टू रीड। इसको आपको रीड करना है लाइन बाय लाइन। यू नीड टू रिमेंबर द एसेंस, यू नीड टू रिमेंबर द पब्लिकेशन डेट, you need to remember any imagery or metaphorical words provided there. Now Sylvia Plath deals with themes such as immense psychological and mental struggles. Though she has suicided, इनकी लाइफ काफी अप्स एंड डाउन्स के साथ रहा है, तो ये थीम्स भी अपने वर्क्स में वैसे ही डील करती हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज, मेंटल स्ट्रगल्स के बारे में बताती हैं। इनके एक और पोएम है तुलिप्स एंड लेडी लैजरस। लेडी लैजरस भी आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। एंड हर ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज द बेल जार विच वॉज पब्लिश्ड इन 1963. There is a very important poetry collection of hers, Ariel. Now, the next writer is Anne Sexton. Her debut poetry collection was To Bedlam and Part Way back 1960, which you need to remember the name and date. Her other important works are All My Pretty Ones, 1962, Live or Die, 1966, and for this work she won Pulitzer Prize also. You must remember the names of the writers. Poets का नाम याद रखना है। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन में ये क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से राइटर्स जो है वो कन्फेशनल पोएट्स नहीं हैं या फिर है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर इज जॉन बेरीमैन। इनका एक कलेक्शन वर्क है द ड्रीम सॉन्ग्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ 385 songs. In this work, he addressed themes such as mental instability, addiction, identity crisis, etc. इनके कुछ important poems है जैसे कि Homage to Mistress Bradstreet, 1956, and इनका बाकी लोगों से confessional poetry एक point पे differ करता है कि ये अपने works में humor भी use करते हैं, humor का use करते हैं। The last important writer is W.D. Snodgrass. आपको एक कंट्रोवर्सी दिखेगा बिटवीन हु इज नोन एज द फादर ऑफ कन्फेशनल पोइट्री। आपको बहुत जगह दिखेगा कि W.D. स्नॉडग्रास लिखा है, बहुत जगह दिखेगा रॉबर्ट लोवेल लिखा है, बट अगर आपसे कभी भी ऑप्शन में दोनों है तो यू विल चूज रॉबर्ट लोवेल देयर। W.D. स्नॉडग्रास का सबसे फेमस पोइट्री कलेक्शन है हार्ट्स नीडल, 1959 का।
He also won the Pulitzer Prize in 1960. आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। एक पॉइंट आपको याद ये रखना है यहाँ पे कि हाउ कन्फेशनल पोइट्री डिफर्स फ्रॉम रोमांटिक पोइट्री, क्योंकि रोमांटिक पोइट्री में भी तो राइटर्स अपने फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। न्यू क्लासिकल एज के बाद वो कहते हैं कि नो विल राइट अबाउट आवर फीलिंग्स। विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, सारे राइटर्स, जॉन कीट, सब अपने फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, रोमांटिसाइज कर रहे थे चीज़ों को। द डिफरेंस इज दैट कि वो अपने फीलिंग्स को ओपनली बता तो रहे थे, बट वो फीलिंग्स के बारे में बात करना वॉज नॉट अ टैबू। देर वॉज नो आई फैक्टर, वो पर्सनल फीलिंग्स नहीं थी उनकी। कन्फेशनल पोइट्री में आप अपने पर्सनल फीलिंग्स के बारे में बात करते हो, आप अपने आई फैक्टर के बारे में बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे पढ़ोगे तो आपको एक टाइम पे लग सकता है दैट इट इज कन्फेशनल बिकॉज ही इज कन्फेसिंग हाउ ही it's been 5 years and how he still misses the place named Tintern Abbey, and कैसे टिंटन एबे के मेमोरीज ने उनको उनके टफ टाइम पे हेल्प किया है। बट देर इज नो, दैट इज नॉट अ टैबू टू टॉक अबाउट, राइट? वो आपका आई फैक्टर नहीं है, दैट इज सिंपली पुटिंग योर फीलिंग्स आउट देयर। Confessional poetry is different from romantic poetry, completely different from romantic poetry. I hope these points are clear to you and that you have all noted the important points. That's all for today. Let's end the session. अगर आपको कोई भी डाउट होता है when you will watch the video, you can comment on the video कि ये doubts है मेरे. Now I would like to end the session. Have a lovely day, learners.